तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं मुरली नोट्स का. मुरली नोट्स were first written in the form of letters from Didi Manmohini to Dadi Janki during the 1970s. At that time, Murlis were sent by mail as there was no internet and all written communication took place through the post office system. Letters between India and London took several days. At that time, Murli notes were in the form of handwritten questions and answers of points from that day's Murli on blue airmail paper. This was Dadi Janki's additional spiritual sustenance for the 4 years that she could not leave London while her residency papers were being processed. This was also an important part of my spiritual sustenance in my first years of GAM. The Murli notes in this series of books span the period 2021 to 2025. They were not prepared regularly each day, but according to the available time and the striking nature of particular Murlis. The Murlis are the words of incorporeal Supreme Soul Shiva, spoken through the mouth of Prajapita Brahma, his chosen medium. The Sakar Murlis contain the words of both Shiv Baba and Brahma Baba. The combination of the two is Bab Dada, the father of souls and the great grandfather of humanity. After Brahma Baba left his body on 18 January 1969, the Avyakt Murlis were spoken through Dadi Gulzar, also known as Dadi Hriday Mohani, who was the trance medium for the combination of incorporeal Shiva and the subtle bodied form of Avyakt Brahma, known as Avyakt Babdada. The Sakar Murlis that we hear daily are of the last 5 years of Brahma Baba's life. The Avyakt Murlis ceased to be spoken in September 2017, shortly before Dadi Gulzar left her body. From that time, we have been left with the inheritance of the mass of Sakar and Avyakt Murlis, which contain the teachings given by incorporeal God to the gathering of mouth-born Brahmins, the Brahma Kumaris and Kumaris, Brahma Kumars and Kumaris. Our work now is to grasp the depth of knowledge and yoga that is contained in this extraordinary legacy. The knowledge is like a many faceted diamond, and each Sakar Murli is like one facet and leads to greater clarity of the diamond, which is called the knowledge of the Creator and the creation. Each facet is like a road that leads into the mind of God. Traveling all these roads leads to clarity, and when Murlis are churned, you are enabled to have yoga. Baba compares the Murlis to grass and his students, who at that time were mostly women, to cows. This is why in India cows are considered sacred. The cow is the symbol for the woman who was intellectually and mentally nurtured directly by God with the grass of knowledge, which she then learned to decrypt by rotating the unrefined grass. She has to first
digests the information through chewing the cud all day, then passing it through the four stomachs of the cow. The stomach is symbolic for intellectual processing of concepts. This becomes milk. The milk has to be churned by rotating it back and forth until the water and milk begin to separate. The buttermilk is discarded and the butter is then cooked to remove all remaining water until there is only pure butter fat or ghee. This is why it is said the holy swan can separate milk and water. The ghee is the propellant that powers the mind to leave the gravitational forces of matter and Maya and fly to the incorporeal world via a vortex that permits focused and direct mind to mind contact with God. This stable focus enables the Shiv Shakti to take Shakti directly from God. This Shakti, the power of God, taken into the soul, acts like a hypersonic missile and breaks open the gates that deny you access to the subconscious. When you open the subconscious, you have turned the key and opened the Pandora's box that contains all the evils of the world. कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे आप, ये सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, मतलब व्हेन इट ओपन्स, ये जब इम्प्योरिटीज अलग हो जाता है। हाँ। जैसे दीदी ने समझाया ये बात कि जब हम चर्न करते हैं तो दूध हाँ। और पानी बटर मिल्क को अलग कर देते हैं और फिर उसमें बटर निकाल लेते हैं और बटर से फिर घी बनाते हैं और वो घी हमारा बाबा के साथ फोकस ऑफ अटेंशन को इंक्रीज करता है और उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और खुल के अंदर में जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल कर कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। इसीलिए हम अवेयर हो जाते हैं, हम चेकिंग करना शुरू कर देते हैं और जब चेक करते हैं और दिखता है कि एकदम सूक्ष्म रूप में ये वाला संस्कार है, वो वाला संस्कार है, ये देखने लग जाते हैं। राइट? तो ये चर्निंग से होता है, आप बोल रहे हो? हाँ दीदी ने बोला। हाँ, ज्ञान की चर्निंग, एक तो ज्ञान की चर्निंग, फिर धीरे धीरे क्या है, कोई सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन को भी हम चर्न करने लग जाते हैं। राइट? ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। हाँ स्नेहा बहन बोलिए। हेलो, मतलब वो अनन्या बच्चे का मीनिंग चाहिए था मुझे पूरा। अनन्या बच्चे? अनन्या बच्चे कौन से होते हैं? अनन्या, बाबा ने आज वर्ड यूज किया ना, अनन्या बच्चे होते हैं। अनन्या बच्चे कहाँ पर बोला था, मुझे ध्यान नहीं रहा। अभी हेडलाइन में ही है। हाँ, अनन्या बच्चे तो शायद वो ही बोला है बाबा ने कि जो ज्ञान को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। कुछ शेयर करना चाहेंगे? मतलब हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मतलब अनन्या बच्चे मुझे इतना पता है, हमारे दीदी ने बताया था कि जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, जब सब बाबा का सुनते हैं, वो अनन्या बच्चे रहते हैं। हाँ, बाबा का श्रीमत पर तभी चल पाएंगे जब ज्ञान को समझेंगे अच्छी तरह। मैं वही मीनिंग पूछ रही थी कि अनन्या का मीनिंग क्या है। अनन्या की मीनिंग कोई शेयर करना चाहेंगे? लिटरल मीनिंग क्या है अनन्या का? Didi, can I share Yes, something? yes, please. I think there is a misunderstanding. Sneha Ben is talking about the Murli, and maybe she might have joined late and she has not got what we are talking about. Oh, okay. तो हाँ, हम लोग आज की मुरली का जो वो सार, मतलब जो फर्स्ट 2 लाइंस होती है ना, she is talking about that. अच्छा अच्छा।
अच्छा स्नेहा फिर बहन, हम आप लोग कौन मुरली से टॉपिक पे स्नेहा बहन, हम मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन से मुरली टॉपिक नोट्स पे पढ़ रहे हैं। अच्छा ये क्या होता है कुछ मुझे नहीं पता है। ये जो मुरली में से एक्सट्रैक्ट करके सिस्टर डिनीस ने एक बुक लिखा है, उस बुक को पढ़ रहे हैं हम। अच्छा ये नहीं पता था, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक और किसी को कुछ शेयर करना है या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। To open the whole of the contents of the subconscious all at once is intolerable, and therefore there is a safety mechanism in place that allows only a small amount at a time to rise into the subconscious mind. These are called storms of Maya. Most BKs consider that experiencing storms of Maya is a bad sign. But Baba says storms of Maya should erupt. जैसे बाबा ने कहा भी, मुरली में भी कहा कि विघ्न आएंगे, तो यही सब विघ्न है। कोई ऐसे भी करते हैं कि किसी को जैसे मैंने ऐसे कुछ मुझे कुछ मिला है और कुछ मिला है, वो मैं किसी को बोल देती हूँ कि आप मत बताना नहीं तो विघ्न आ जाएगा। ये प्रोसेस नहीं है। विघ्न तो आएगा, विघ्न अपने अंदर से आएगा, बाहर से विघ्न नहीं आएगा कि किसी आत्मा को रोक दे कि बताना मत। तो विघ्न अंदर से आएगा। किसी ने बताया तब आप कितना स्टेबल रहते हो, भले बताए। या हम सोचते हैं कि मेरे बारे में सब जान लेंगे, तो वो अपना इनर स्ट्रेंथ होता है। हाँ, ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है, ये नहीं है कि एक बार में ही इतना ताकत हो जाए। पर मैंने देखा है कि बहनें बोलते हैं कि बताना मत, विघ्न आ जाएगा नहीं तो इस कार्य में। Unless they erupt, you remain unaware of the hidden forces of ancient negative karma that drive your character, behavior and present karma. और हम सबको पता है कि इनिशियली हमें पता ही नहीं पड़ता था कि हमारा थॉट्स चल रहा है या कुछ इमोशंस जाग रहा है, वहाँ अवेयरनेस ही नहीं था। और धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान योग करने लग गए, धीरे धीरे हमारा वो सारे चीज़ जो हिडन फोर्सेस वो दिखने लग गया। बाय बिकमिंग अवेयर लिटिल बाय लिटिल, you are given the opportunity to deal gradually with your ancient negative karma of past lives. You progressively receive powers through yoga practice. These are your weapons for handling the eruptions of storms of Maya. तो जैसे ही हम वो सब फेस करने लग जाते हैं, जो भी विघ्न आते हैं, हम सब ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सामना करने की शक्ति सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। बाबा कहते हैं घबराना मत। ज़्यादातर मुरली में ही बाबा कहते हैं ये सब, घबराना मत। तो वहाँ पर जब फर्स्ट स्टेप हिम्मत का कदम हम उठाते हैं, आई एम गोइंग टू फेस करके, तो वो फेस करना माना पावर टू फेस को यूज़ करना। और फिर पावर टू टॉलरेट को भी यूज़ करते हैं, पावर टू एकोमोडेट को भी यूज़ करते हैं। और ये सब है हमारा वेपन्स। These are your weapons for handling the eruptions of storms of Maya. It is said that you finish, burn, cut, melt, destroy your past negative karma through yoga. और ये जो प्रोसेस के द्वारा हम चल रहे हैं, ये भी योगा है। योगा माना ये नहीं है कि बैठ के योगा करना, but you need to understand how. The practice of yoga also leads to the eruption of illness, which may be physical or mental. This also has to be handled by your accumulated powers of yoga and applied. फिजिकल भी हो जाता है, क्योंकि मेंटल होता है तो वो इफेक्ट पड़ता है फिजिकल में। This type of storm purifies the elements of matter of which your body is made.
तो तूफान आना गलत नहीं है, तूफान हमारा प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, हमें स्ट्रांग बना रहे, हमारे शक्तियों को यूज़ होता है और वो शक्ति को यूज़ करना सीखते हैं, हम ट्रेंड होते हैं, स्किलफुल बन जाते हैं. Thus, Raj Yoga is specifically for the purpose of purifying the soul and body. It must be developed slowly and methodically. It is said, when you rise, the world rises. When you fall, the world falls. This means that an individual who takes up Raj Yoga study and practice at this level becomes a person whose self impacts the whole world. To impact the whole world in this positive way is spiritual service. विश्व का सेवा करना. And leads to the status of a world emperor. विश्व पर राज्य करना in your subsequent life. Incorporeal God comes at the confluence of the end of one time cycle and the beginning of the next. You study and practice this in your last life in one time cycle and receive the reward of your efforts in your first birth of the subsequent time cycle. तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अभी ही उसका फल पाने का इंतज़ार नहीं करना है, वो फल हमें अगला जन्म में मिलेगा प्रारब्ध के रूप में. तो रिज़ल्ट पर फोकस नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट पर फोकस होते ही हम हिलने लग जाते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशंस हाई रहता है और फुलफिल नहीं हो पाता है. हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस एज in the context of the gathering of Brahma Kumars and Kumaris determines the details of your first birth in the next time cycle and your subsequent births of that cycle. The cycle is also called the day and night of Brahma. You also go through your day and your night. तो यही समय है जब हमें पेशेंस रख के, भले कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी अनुभव भी नहीं हो रहा है, तो भी आगे बढ़ते रहना है, एक बल एक भरोसा के साथ. क्योंकि जहाँ पर हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, वहाँ पर हम कमज़ोर बन जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते. पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसी बातें निकल आता है फिर कि इतना किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो, या मेरे से नहीं होगा, तो कमज़ोर संकल्प आने लग जाता है. इसीलिए बहुत अलर्ट रहना है कि हमें रिज़ल्ट पाने का इच्छा नहीं रखना है. मिलेगा, ज़रूर मिलेगा रिज़ल्ट, पर पेशेंस रख के आगे बढ़ना है. How you conduct yourself during the confluence age also has an impact on all people of the world, depending on the quality of your spiritual knowledge and yoga. तो क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम समझ रहे हैं ज्ञान को और कैसे हम योग कर रहे हैं. These books may be helpful companions to those BKs who regularly study the Murlis and practice Raj Yoga meditation. तो ये इंट्रोडक्शन पूरा हुआ है. आप लोगों को कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैं फर्स्ट चर्निंग में जाऊंगी. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है symbolism, dharma, purity, the spiritual practice of Raj Yoga. The essence is to shift from being a stork to being a swan. बगुला से हंस बनना.
यही पुरुषार्थ कर रहे हैं हम. A stork means someone who is non-vegetarian, always looking out for a fish to catch. It is someone motivated by self-aggrandizement and gratification of sensory desires. Aggrandizement का मीनिंग एक बार सर्च करेंगे. The act of increasing wealth ओके. or prestige or power. तो सेंसरी डिजायर्स, जिससे जो कर्मेंद्रिय द्वारा एक सेटिस्फैक्शन पाना. वेर इज ए स्वान, जैसे फिश खाते हैं, फिश खा के उसका सेटिस्फैक्शन लेते हैं. और लुकिंग आउट फॉर ए फिश माना कंट्रोल करने के लिए, फिश को कंट्रोल करके उसको खाने के लिए तैयार रहता है. Whereas a swan symbolizes someone who has a subtle intellect, has no vices, especially no lust, and is a representation of purity. A swan symbolizes someone who can distinguish between stones and pearls. Stones means concepts that can be used to harm others. पत्थर मारते हैं ना तो किसी को चोट पहुंचता है. और स्टोन्स और पर्ल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना आता है, परखने का शक्ति होता है कि कौन कैसा सोल है, कैसे उस आत्मा को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो स्टेट में तक पहुंचा सकते हैं. Stones means concepts that can be used to harm others, particularly those who are in an inferior position. Pearls refers to concepts that are enriching, empowering, and filled with wisdom. This expression, do not give sorrow, dukh na dena, should better be translated as do not cause harm. किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना. Sorrow is personal and anyone can accuse you of giving them sorrow, whereas harm is more specific and tangible. तो हम ये समझते थे कि दुख नहीं देना माना sorrow नहीं देना, do not give sorrow. पर दीदी कह रहे कि do not harm anyone, तो हार्म करना माना एक इंटेंशन के रूप में आ जाता है कि किसी का नुकसान पहुंचा देना. With a pure intellect, you can distinguish which karma causes harm and which karma gives benefit. तो कभी हमें ऐसे होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला को हम दुख दे रहे, पर हम ये चेक नहीं करते कि हमारा इंटेंशन दुख देने का था क्या, हार्म करने का था क्या. अगर हार्म करने का इंटेंशन नहीं है और सामने वाला ने दुख ले लिया तो वो कर्मा बेनिफिशियल कर्मा है, क्योंकि हार्म करने का इंटेंशन ही नहीं था. Therefore, it is better to talk about harm and benefit rather than happiness and sorrow. हाँ जी देवोगन. इसमें चलो हार्म का समझ में आया, बट बेटर कर्मा वो समझ में नहीं आया. हाउ इट इज अ गुड कर्मा. जब आप हार्म करना नहीं चाहते हो, हाँ. आप किसी को कोई एक संस्कार से लिबरेट करने के लिए उस आत्मा को, सपोज कोई आत्मा है, जब आप पैसे देते हो वो पैसे को मिसयूज करती है ना, वो मिसयूज करती है और उसके लिए आपने पैसे देना बंद कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी क्योंकि वो मिसयूज कर रही है. तो आपका इंटेंशन
हार्म करने का इंटेंशन नहीं था कि पैसे से वो पैसे नहीं मिले तो सफ़र करते रहे. हम्म, आपका इंटेंशन था कि वो आत्मा को रियलाइज हो और वो पैसे को सही तरीके से यूज़ करे. आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया है. बट वो आत्मा बात को नहीं समझने पाने के कारण, क्योंकि वो संस्कार है पैसे को फिजूल खर्चा करने का, तो अचानक जैसे ही आपने बंद कर दिया तो उसने दुख ले लिया, हम्म, क्योंकि अभी खर्चा नहीं कर पा रहे. वो क्या है, उसके लिए तो एक स्टॉर्म हो गया ना, और वो स्टॉर्म हो आने के कारण, उसको हैंडल करना नहीं आने के कारण, वो उस स्टॉर्म के कंट्रोल में आ गया और इमोशंस में फंस गए, तो दुख ले लिया है. तो वहाँ पर क्या है, कर्मा गिव्स बेनिफिट, राइट? हाँ मतलब आई थिंक विच इज फेयर जो आपने ये बताया, बट इट ऑल्सो सर्कुलेट्स अराउंड now what is your karma around that, right? One is we realizing that yes, we are not giving dukh. The other one is every time you have a interaction with the soul, you are continuing to not giving the money, but उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्स कैसा है वो भी इज पार्ट ऑफ कर्मा, राइट? यस, वो सीन तो खत्म हो गया. हाँ, अच्छा बाकी वो आपका, सीन खत्म, हाँ, वो सीन खत्म हो गया. यस. अच्छा, because I was thinking कि now that is one, because there are other things now it's not that कि वो thing मतलब you have to constantly interact with that soul, right? And how is your interaction there? Neutrality also will define our karma, right? There Yes, we cannot definitely. sit with the judgment that oh we are trying to teach a lesson to them. Right. Yeah. तो आगे पढ़े. हाँ, Emotions are subjective and cannot be legislated. With reference to the official BK English Murli translation, Swadharma should be translated as the dharma of the self. Dharma means what you are. Thus the original dharma means what you are originally, the soul, and not what religion you believe in. क्योंकि दुनिया में तो धर्म माना रिलीजन है, तो यहाँ पर स्वधर्म माना ओरिजिनल धर्म, ओरिजिनल स्टेट. योर रिलीजन इज पार्ट ऑफ योर फिजिकल आइडेंटिटी, not your spiritual identity. The purpose of doing this practice and study of Raj Yoga is not to go to nirvana and stay there, but to learn how to do such karma that brings you to the beginning of the cycle of time in a high position. Skillful banna. Such karma enables you to stay in a good position as far as possible throughout the whole cycle, even though there is overall decline. तो पूरा साइकिल में कोई ऐसे संस्कार हमें अच्छा कर्मा करने के लिए भी हेल्प करता है पूरा साइकिल में. Your relationship with Shiv Baba as your father, teacher and Sadguru is that you claim the inheritance, which is the knowledge. You also claim life on earth, starting with a very high position in the civilization of heaven. To go to nirvana means simply silence and immobility. It is a destination, gati. मतलब जब हम निर्वाण धाम में जाते हैं, वो एक इंडिकेशन है कि हम कंप्लीट स्टेट को पा लिया है, इसीलिए हम जाते हैं. पर एक्चुअली वापस नीचे आने के लिए हम अभी तैयार हो रहे, और नीचे वो उस स्टेट में जहाँ पर सिर्फ सुख है, दुख नहीं है. तो इट इज़ ए डेस्टिनेशन गति, but it would not be
called an inheritance. वर्षा, वो वर्षा नहीं है जो निर्वाण धाम में जाना है। वर्षा ये है कि कैसे हम ज्ञान को समझकर हमारा एक्शन को चेंज करके प्योर कर्मा में बदल कर वो स्किलफुल बने। द वर्ल्ड ऑफ हेवन सदगति वुड बी कॉल्ड एन इनहेरिटेंस बिकॉज इट इम्प्लाइज स्टेटस, वेल्थ, पोजिशन, influence, etc. in the civilization that is currently being prepared through the spiritual knowledge and yoga. तो वहाँ पर जो प्रालब्ध मिल रहा है वो है इनहेरिटेंस, क्योंकि वो हमने एक्वायर किया है बाबा से करके, वहाँ पर वो दुनिया हमें मिला है। This implies that the key practice and the price of going to the world of heaven with a high status is purity. It means primarily to refrain from lust and all other aspects of negative addictions in which a person satisfies themselves through sense gratification. This is the price of such an inheritance. तो ये सारे चीज़ जो भी एडिक्शंस है, लस्ट है, वो हम प्राइस के रूप में देते हैं। थिंक ऑफ द वर्ड सिन एंड चैरिटी इन ए डिफरेंट वे। अभी सिन और चैरिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिन मीन्स एनीथिंग दैट पुट्स यू इन लॉस, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने पाप को ऐसे ले लिया कि हम बहुत समय गिल्ट में रह जाते हैं, पाप कर्म किया है। तो यह बहुत ब्यूटीफुली बताया है कि पुट्स यू इन लॉस। तो जो जिसका सेल्फ लव है, जो स्वयं का स्थिति से प्यार है, वो लॉस में कभी नहीं जाना चाहेगा। रेदर देन मेक्स यू ए बैड पर्सन। Charity is anything that puts you into profit. तो जब हम पाप कर्म कहते हैं तो आप देखना, जब आप इस पाप कर्म के बारे में हम जब सोचते हैं तो हम दूसरों से अलग कर लेते हैं, खुद को जैसे एक नीचा दिखा देते हैं। पर हम अगर सोचते हैं कि पुट्स यू इन लॉस, तो वो अलग सोच हो जाता है। इफ यू आर डीपली प्योर एंड डू प्योर कर्मा, पुण्य, देन यू विल बी ए बेनिफिशियल एंड बेनेवोलेंट पर्सन हु इज सुटेबल टू बी ए रूलर ऑफ द वर्ल्ड। If you function on the basis of sense gratification, it means that you will use people which does not benefit them. क्योंकि खुद के अंदर जब ताकत नहीं होता है तो फिर दूसरे को कंट्रोल करके, दूसरों को चेंज करके, बाहर वाला पावर को यूज करके खुद को कर्मेंद्रियों द्वारा सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं। पर जब पुण्य कर्मा करते हैं तो अपना संस्कार को कंट्रोल करके, जो पुराना कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम्स को पार करके, ओवरकम करके हम कुछ बनते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। बाबा टॉक्स ऑफ फायर। Fire is a purifying element. Souls cannot be burnt. This is clarified in the 2nd chapter of the Gita, and this is another way of looking at souls as always being existent, immortal and indestructible. किसी को कुछ शेयर करना है यहाँ तक? This implies there is no need to ensure a soul
Life insurance is for when somebody dies. The relatives are the financial beneficiaries. Baba goes deeply into the point that souls have never been created. They are always there. God is always there. The drama is always there. The 5 elements of matter always there. The creative action of God is to bring everyone and everything back to their original condition. Parivartan, which is fully energized and fully pure. The work of creation is also the work of liberation. We are liberated from the bondages of karma. Baba's work is also called a government because he sets up an administrative system for the operation of the community of BKs. The people who are in that system learn and are able to apply that system to make the Confluence aged world function and then carry the essence of that across to Satyug, the golden age. तो ये जो सिस्टम बनाया है बाबा ने, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो अप्लाई करके कॉन्फ्लुएंस एज में वो फंक्शनल बना के फिर सोल को सतयुग में ले जाना, सतयुग वाला संस्कार में ले जाना, ये है मेन function of this administrative system. That world functions on this basis as well. That means this is the establishment of a kingdom, a system for purifying souls individually and collectively, as well as purifying their relationship with nature. This is also called a business, because great good fortune arises when you apply the principles of purity. When you get others to also apply them, the result is massive prosperity in the civilization that will arise after the current one falls apart. तो ये purity, applying the principles of purity में दो चीज़ है. एक मुरली चलाना, मुरली का समझ देना, दूसरा एक्शन में जब एक दूसरे के साथ करीब आते हैं सेवा में दिन भर में, उस समय भी एक दूसरे का सहयोग देना प्यूरिफाई होने के लिए. The word worthy is used as the translation of the word layak. But worthy is a religiously loaded word. It is better to translate layak as competent. तो लायक का मीनिंग है वर्दी नहीं है, competent. If you are performing negative karma, you will end up in difficulties and impurity. जहाँ पर imbalance कर लेते हैं हम, वहाँ पर difficulties आता ही है. If you become competent and expert in spiritual knowledge and practice, then during the confluence age, you create a position for yourself in the world of the future. जो पद निर्धारित होता है. Therefore, layak refers to competency and real understanding, not whether or not you are considered good. तो बीके वर्ल्ड में हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि कोई हमें अच्छा बोले, पर यहाँ पर ये कहा कि लायक बनना माना
real understanding, competency. People of the Christian culture tend to react emotionally to this word. Didi, हाँ, here in Layak, also in BK word they think or talk about कि जो center पे है, they are worship worthy almost. Even in Confluence, yes, the people who are not staying there and staying at their home are not at all worthy. yes. क्योंकि So वो that is also लिमिटेड Layak. लिमिटेड उसमें है, लिमिटेड नॉलेज है, और वो Yes. ये भी भक्ति भाव है जो अलग कर देना. स्पेशली क्या है कि जो यज्ञ वर्ड को ही नहीं जानते हैं. यज्ञ ये नहीं है कि सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो यज्ञ है और बाहर जो है वो यज्ञ नहीं है. सिमिलरली वो समर्पित बात को भी अलग कर दिया है भक्ति मार्ग की तरह. एक डिस्क्रिमिनेशन रख दिया है. समर्पित ये नहीं है जो अंदर है ऑर्गेनाइजेशन में है और बाहर जो है वो समर्पित नहीं है. ऑफिशियल समर्पण माना वो जो ऑफिशियल समर्पण इसलिए रखा गया है एक्चुअली कि वो सारे सोल्स सेवा में, जैसे जहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो सेवा को रजिस्टर करते हैं या एक डेटा मिल जाता है कि कितना सेवा हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से एक, जैसे बाबा ने कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया है उसके लिए है. पर ये नहीं है कि जो बाहर है वो समर्पित नहीं है. समर्पित वर्ड बुद्धि से समर्पित होना. कितना हमने अपने को बाबा के पास समर्पण किया है, बाबा के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से चलने का हिम्मत दिखाया है, वो है समर्पण. आप अगर यज्ञ की हिस्ट्री को देखेंगे, ऑफिशियल समर्पण पहले था क्या? पहले तो था ही नहीं. बाबा मम्मा दादी लोग ऐसे ही आए थे, वहाँ कोई ऑफिशियल वो नहीं था. पर बाद में ये ऑफिशियल हो गया है क्योंकि कुछ बातों में फिर ऑफिशियल उसकी ज़रूरत होता है. क्योंकि जैसे ऑफिशियल समर्पण जो जिसका होता है उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन से ही सब कुछ मिलता है, तो इसीलिए वो करना पड़ता है. पर धीरे धीरे जैसे ही डिग्रेडेशन हुआ है, वो 4 स्टेजेस से जब ऑर्गेनाइजेशन पास किया है, उसका मीनिंग भी चेंज होने लग गया है. मैंने भी सुना था पहले कि जो ऑफिशियल समर्पित होते हैं वही सतयुग के लायक बनते हैं. पर भगवान के घर में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके लिए इक्वल है. उनके हिसाब से जो प्रॉपर पुरुषार्थ करते हैं, जो प्रॉपर नॉलेज को समझते हैं, हिम्मत का कदम उठा पाते हैं, वो सतयुग में जाते हैं. जो वो स्किल को सीख पाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि मेरा कंफर्ट कैसे करने से मेरा कंफर्ट होगा यहाँ पे. Yes, and I think जो हम इस तरह से देखते हैं, जो अभी सब देख रहे हैं इन बीकेस, कि अंदर रहने वाले, बाहर रहने वाले, और hierarchical, you know, the superiors, the inferiors. This creates expectations. हाँ, और ये definitely. expectation in itself is a corruption. हाँ. When you don't see everyone as an equal, Yes. then corruption arises. Because then you have expectation कि वो लोग अंदर हैं, they should do XYZ. So if they are not fulfilling, you will get corrupted. They will see you कि because you are outside, you should come for seva, you should do XYZ. If you are not doing it, they will get corrupted. Yes. So both the ways इसमें corruption आ जाता है, और जो हमारा meaning है वो उसमें cease हो खत्म हो जाता है. हाँ. And even the work भी divided हो गया. अंदर वाले ऊंचा वर्क करेंगे और बाहर वाले नीचे वर्क करेंगे, ऐसे भी है. तो यही वाला बात मैंने शायद 1-2 दिन पहले मुरली में डिस्कस किया था कि ये किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, ये वर्टिकल रिलेशनशिप,
क्योंकि वर्टिकल Yes. रिलेशनशिप में सुपीरियर इन्फीरियर दिखाते हैं, पर बाबा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर Yes, I समान think भाव. in yes, in like अगर हम इसमें देखें तो इंडिया में जो हमारा कॉर्पोरेट्स है या काम करने का तरीका है, it is more on vertical, and that is also getting influenced in our religious organizations Yes, as well. yes, definitely. And abroad, it is more on horizontal way. They work, Correct. whatever things are done. हाँ, इंडिपेंडेंसी, इसलिए तो इंडिपेंडेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. जहाँ पर इंडिपेंडेंसी है वहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे. Right. डिपेंडेंसी में हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होगा ही नहीं, वर्टिकल रिलेशनशिप होगा. Right. So I think Satyuga is about horizontal Yes. relations. Yes. So if you are performing negative karma, you will end up in difficulties and impurity. If you become competent and expert in spiritual knowledge and practice, then during the conference age you create a position for yourself in the world of the future. Therefore, like refers to competency and real understanding, not whether or not you are considered good. People of the Christian culture tend to react emotionally to this word worthy because of the way it is used in the Christian religion. It is appropriate to use neutral vocabulary that does not arouse religion based sentiments. Interestingly, Baba talks of weapons that enable you to become pure. These weapons are spiritual powers and spiritual wisdom for resisting the many ways in which Maya pulls the soul into impurity. तो एक है ज्ञान के ताकत जो बुद्धि खुलते जाते हैं और बुद्धि को रिफाइन करते जाते हैं, और एक है बाबा से जो शक्ति लेके हम अपने शक्तियों को जागृत करते हैं. Maya means sense perceptions of circumstances that are considered reality. जो हम आँखों से देख लेते हैं घटना जो घट रहा है, जो कान से शब्द सुन के अनुमान लगा बैठते हैं, वो है sense perceptions. The soul needs to recognize Maya because it is very subtle. तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, क्योंकि इनिशियली क्या है, सेंस परसेप्शन द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा देखा सुना कोई सिचुएशन को, और फिर झट इमोशन ट्रिगर, ट्रॉमा ट्रिगर होके इमोशंस निकल आता है, और इमोशंस निकल आता है, इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं झट, और जैसे ही कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर हम घबरा जाते हैं. बट अभी हम सीख रहे हैं कि इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आना है. भले हमने देख लिया सुन लिया, पर उसको दूसरे तरीक़ा से, इनिशियली क्या है, बुद्धि से हम उस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमें आदत नहीं है, इसीलिए इमोशंस तक पहुंच जाते हैं और इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं. पर हमारा प्रॉपर अवेयरनेस अगर रह गया, या उसी समय अगर ऐसे लगे कि किसी मेंटर से बात कर ले, तो आप उस इमोशंस को फेस कर सकते हैं. और जैसे इमोशंस को फेस करेंगे, मैंने बहुत बार बोला है कि जब कोई भी चीज़ को फेस करते हैं उसको वीक करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि जब तक फेस नहीं करते हैं तब तक वो इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और कंट्रोल में आ जाते हैं. और इमोशंस जैसे वीक होते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे माइंड को वो इमोशंस के इफ़ेक्ट से छुड़ा देते हैं, इन्फ्लुएंस से छुड़ा देते हैं. और ये छुड़ाने के कारण, सेल्फ कनेक्ट होने के कारण बुद्धि से उस सीन को परसीव कर पाते हैं. तो यही प्रोसेस हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. और ये प्रैक्टिस जब जैसे जैसे करते जाएंगे, एक समय ऐसे आएगा जो बाबा कहते हैं सेकंड में बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ,
तो वो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना आ जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि सेंसेस द्वारा भले ऐसे दिख रहा है पर ये नहीं है, बात कुछ और है। और फिर हम अपने को डिटैच करके उस बात को समझ लेंगे, अपने को भी बचा लेंगे, सीन को भी दूसरा रूप दे देंगे। तो उसी प्रोसेस के दौरान हम वो स्पिरिचुअल पावर्स को गेन करते हैं और स्पिरिचुअल विजडम को भी गेन करते हैं। माया मीन्स सेंस परसेप्शंस of circumstances that are considered reality. The soul needs to recognize Maya because it is very subtle. और माया का इफ़ेक्ट बहुत सटल वे में करता है हमारे माइंड के ऊपर, इसीलिए बहुत अवेयरनेस ज़रूरत है। और जब हम ये प्रोसेस को हर कदम पर रिपीट करते रहेंगे तब हम वो शक्ति को पा लेंगे जहाँ पर माया का सामना कर सकते हैं। माया क्रिएट्स इमोशंस ऑफ डिज़ायर, नीडीनेस, immaturity, reactivity, and your weapons will neutralize those feelings. Then you are able to act on the basis of wisdom rather than on the basis of emotions, which are contaminated by your emptiness, neediness, desire, and because you do not recognize this. तो आगे पढ़ना है या नेक्स्ट डे के लिए रखें? लंबा है बहुत। कल के लिए रखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, कुछ समझना है और या समझ में आया? क्योंकि मुरली में भी ये बातें बार बार आता है और हमें भी फील होता है कि हम एक ही बात को बार बार हम डिस्कस करते हैं और करना भी पड़ता है, क्योंकि इंटेलेक्ट में जब तक वो बात बैठता नहीं है तब तक हम धारण नहीं कर पाते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और इम्प्लीमेंट ना कर पाने के कारण हम बार बार माया के आगे फेल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बार बार जैसे घिसाई करते हैं ना, वो घिसाई करते रहना पड़ता है जब तक ना बुद्धि में फिट बैठ जाए। ओम शांति।